Hare Krishna. So this world is created for Jiva, for the life to exist as per his desire. When the life was brought into this world by the Lord, I think so this is good for reading, not for turning the page. It will become very difficult. Okay, I got it. It's okay. When this world is created to facilitate the Jiva who expressed his intent to enjoy independent of the Lord. And that very feeling of independence caused ignorance. And from that ignorance comes modes of gunas, tamoguna. That's why it says, Ajnanajam tamaha. Ajnanajam tamaha, from Ajnana. And what is that Ajnana? Forgetfulness of Krishna. So why forgetfulness of Krishna? Because independently wanted to enjoy, independently want to behave from the Lord. So when some jivas, not all jivas, some jivas express the desire, that jiva was brought into this world. And when brought into this world, whether that independence is available? No. So in this very Bhagavatam, 13th chapter, it said, Yata gavo nasiprotas. Yata gavo nasiprotas. Tantyam baddhacha damaha. Damabihi. Dama means rope. Gavo nasiprotas. Gavo means cow. Cow is binded with a rope. Their nose is binded with a rope. And tantyam baddas. Vaktantyam namabhil badda vahanti balim eshatuhu. As a cow bound through the nose by the long rope is conditioned, is got conditioned, so also human beings are bound by different Vedic injunctions and are conditioned to obey the orders of the Supreme. Everybody has thinking that in this world I can enjoy independent of the Lord. But the reality is, even this world is organized by the Supreme Personality of Godhead. So everybody has to abide by the organizational structure made by the Lord in this world. And what is the intention of the Lord? Intention of the Lord is the punishment, or to punish the jivas or who disobeyed in the spiritual world. That is not the intention of the Lord. Intention of the Lord is to reform and take them back to Godhead. Take them to that world where complete pleasure is available. जो pleasure के लिए, that for that kind of pleasure people are struggling, suffering here, working very hard. So while working very hard to experience pleasure in this world, there is a lot of crisscrosses there. Like for example, on the road everybody is driving fast. Everybody wanted to achieve their goal, or everybody wants to reach their destination. So if everybody is driving so fast and to reach their own destinations, because everybody have their own destinations, then what will happen? There is going to be chaos in the road. Accident bound to be there. So that's what government does. They made a traffic rules. Yes, you wanted to drive on the road, drive. You wanted to drive fast? Of course. Gavo nasi protacha. That a cow has a freedom to the degree how much the rope is, the length of the rope. So likewise, you have freedom to drive on the road, but not more than 100 kilometers, not more than 80 kilometers, not more than 60 kilometers. Within the city, not more than 40 kilometers.
So the rope, you see that length of the rope? And based on whom? Based on what? If President of India is coming, any toll will stop him? Toll gate? No. So rule is different for him. Some police department is coming, rule is different for them. Common man is coming, rule is different for him. So based on what designated, in what designation they are situated, based on rules are different. And for all these rules are meant for having a easy passage to achieve one's own goal or to reach one's own destination. So now today the biggest problem in the human society is, what is the goal of life? What is the purpose of life? What is that need to be achieved in life? That itself is a big confusion. So that is what सबसे पहले क्लैरिफाई किया गया है, that संसिद्धिर हरितोषणम. The goal of life, सुनिश्चितस्य धर्मस्य, the very purpose of religion, the very purpose of religious principles, the codes is samsiddhir haritoshanam. It is meant for the pleasure of the Lord. It is for the pleasing the Lord. All the orders of life is to please the personality of God. This is the goal of life. This is the purpose of life. But contrary, what is the people's understanding? People's understanding is dharma is meant for, religious principles are meant for artha. Artha means economic development, to earn money. And why we have to earn money? Why you required artha? Kama, to satisfy one's desire. You see? See, in the olden days, people used to get married in 18, 20 years. Very early they used to get married. Nowadays, marriages are getting postponed. Nobody is getting married, in 20s. Practically everybody is reaching 30s. So if you ask them why? Because they want to settle down first. They want to earn money so that they can run family. Isn't it? So that they can have a car, they can have a house, they can have poshana to take care of the children. They require money. So to fulfill their desires, to have a house, to have a car, to have a family, what is required? Money is required first. So artha is the purpose of kama. I'm saying this is the kind of understanding today the world is having. Money is required to fulfill your kama. And after some time, if you don't fulfill any nirasha, even after some time you'll get fulfilled. And when you got fed up with all that, then you turn towards moksha. How to get moksha means liberation. Liberation means झंझट से बाहर निकलना, बस इतना ही है. मोक्षा मतलब ये मत सोचना भगवत धाम प्राप्त करना. Moksha doesn't mean that you have to attain the Supreme Lord. Moksha only means liberation. Liberation means free from these anxieties. वानप्रस्थ संन्यास. परिवार का झंझट से बाहर निकलना है, धंधा के झंझट से बाहर निकलना है. Yes, in that, because that is a vairagya. Vairagya principle comes from the spiritual subject matter. That's how moksha is actually a spiritual path. That's not a complete understanding, but that is the one step towards the spiritual aspects. But this is the common understanding in the society, but Bhagavatam doesn't say that. And Bhagavatam means the Lord. Lord doesn't say that. Lord says that dharma is for the purpose of dharmasya hi apavargasya. Dharmasya hi apavargasya na artha na artho arthayopakalpate. Dharma is meant for apavarga. Pavarga मतलब material world or material life. Pavarga भौतिक जीवन. भौतिक जीवन में क्या है? In the letters,
In alphabets, we all learned that in Hindi or Sanskrit or any Indian languages, a, e, o, o. Then comes ka, ka, ga, ga, papa, baba, ma, chacha, tata. So pavarga, kavarga, chavarga, pavarga. These are now 5 letters are together, one varga, one division. Kaka, gaga, na, है ना? So like that, pavarga, papa, baba, ma. In these 5 letters, with these 5 letters, the whole material life is indicated. What is that? Pavarga. Pa means parishrama, working very hard. Everybody is slogging in this world. सब लोग बहुत मेहनत कर रहा है. बिना मेहनत जीवन हो ही नहीं सकता. इसलिए आजकल माता पिता तो बच्चों को 3 साल से मेहनत करवा रहा है. 3 साल की उम्र से. हम 6 साल तक अच्छा घूमा फिरा गांव में बढ़िया. आज 3 साल की उम्र में कहाँ रखता है बच्चों को? प्री स्कूल में रखता है. प्री स्कूल में. अरे 3 साल नहीं है. हमारा प्री स्कूल है बेसिल वुड्स अहमदाबाद मंदिर में. 1 साल के बच्चों को लेके आके तो सुला के चले जाते हैं माता पिता. क्यों? माता भी काम कर रहे हैं, पिता भी काम कर रहे हैं. बच्चों को देखभाल करने के लिए आया को देख. आया इज राइट वर्ड. आया. नाउ देर आर ऑर्गेनाइज्ड आयास. अर्लियर आया घर पे जाके देखभाल करते थे. अभी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड आयास. kind of what is that, nursery kind of this thing. So देखिए आप मेहनत कर रहे हैं. बच्चों को भी 3 साल से 4 साल से रबिंग कर रहे हैं. बड़ा स्कूल में ज्वाइन कराना है. देयर इज नो फ्रीडम. इस दुनिया में आए क्यों? हम फ्रीडम के लिए आए. फ्रीडम चाहते हैं. फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लॉ. इधर आने के बाद परिश्रम. एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड. एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड. और इतना मेहनत करके क्या होता है? फा मतलब फेना मतलब थकावट. कभी भी घोड़ा चलते उसका मुंह से फोम आता है. फेना मतलब थकावट. हर जीवन में ये दिखाई देता है. एवरीबडी इज फेड अप विथ लाइफ, फेड अप विथ रिलेशनशिप्स, फेड अप विथ वर्क, इन एवरीथिंग. फेड अप विथ सो कॉल्ड एंजॉयमेंट. जो भी उनको लगता है इसमें आनंद प्राप्त होता है, उससे भी थकावट आ जाता है. ये दुनिया का स्वभाव ऐसे है. बा मीन्स व्यर्थ, wasting time, just useless. Next bhaya, fear, then finally ma, mrityu. So ये भौतिक दुनिया को बता गया पवर्गा. एंड वेरी पर्पस ऑफ धर्म इज धर्मस्य ही अपवर्गस्य. धर्म इसलिए प्रैक्टिस करना चाहिए, रिलीजियस प्रिंसिपल्स को इसलिए प्रैक्टिस करना चाहिए, ये पवर्ग से बाहर निकलने के लिए, भौतिक दुनिया से बाहर निकलने के लिए, ऐसा परिश्रम से बाहर निकलने के लिए, ऐसे थकावट से बाहर निकलने के लिए, ऐसे यूजलेस जीवन को खत्म करते हैं एक मीनिंगफुल जीवन जीने के लिए, ये भय से बाहर आने के लिए, मृत्यु से बचकर रहने के लिए. दिस इज द पर्पस ऑफ धर्म. धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थः अर्थो आपाय कल्पते. इज नॉट मेंट फॉर अर्थ, इज नॉट मेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये पैसा कमाने के लिए नहीं है, धंधा करने के लिए नहीं है धर्म. दिस मेंट टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड. ये भौतिक जीवन से मुक्त होने के लिए. ना अर्थस्य धर्मैकांतस्य कामो लाभा ही स्मृतः. ना अर्थस्य ओके पैसा मिल गया, कमाई आ गया, देखिए अच्छा जीवन जिएगा तो अच्छा ही रिजल्ट होगा ना. जन्मा ऐश्वर्य स्वतः श्रीवीर. कुंती महारानी कहती है आपका जीवन में बहुत सारा पुण्य किया, उसका कारण से ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ आपका जीवन में आ ही जाता है. हम सोचते हैं लॉटरी मिल गया, लॉटरी नहीं मिला है. आपका मेहनत का फल आज मिला है, बस इतना ही है.
कल या परसों या लास्ट जीवन में या 10 जीवन के पहले जीवन में कहीं ना कहीं बहुत मेहनत किया, परिश्रम किया, आपको वो रिजल्ट अभी मिल रहा है, आपको लॉटरी मिल गया, लॉटरी मिल गया। कुछ भी ऐसे कोई आपको आके लॉटरी देने वाला नहीं है इस दुनिया में। सब स्वार्थ लोग हैं, सब स्वार्थ लोग हैं। कुछ कोई किसी को कुछ नहीं करने वाला है दुनिया में। कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है आज, इसका मतलब है पहले कुछ आप मेहनत करके आए हैं, है ना। सो न अर्थस्य धर्मैकांतस्य कामो लाभाय स्मृति। दिस कामस्य, this when financial benefit is there, when economic development is there, that is not meant to gratify your senses, is not meant to fulfill so called material desires. Kamasya na indriya preeti. Desires are there, the desires are not meant to fulfill your indriya preeti. Labho jeeva evata जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थ यच्चेह कर्मभिः. Nothing else should be the goal of life. Nothing else should be the goal of work. So, लोगों में आजकल धर्म का परिभाषा बदल गया. The very meaning of religious principles had changed. So that धर्मस्य ही संसिद्धिर हरितोषणम. The very purpose of dharma, the religious principle, is to please the Lord. To please the Lord. And अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागचा स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य. One has to practice the prescribed duties. उनका जीवन में जो उनके गुण के अनुसार, उनके कर्म के अनुसार जो स्वभाव प्राप्त किया है, वो स्वभाव के अनुसार उनको काम करना चाहिए. ऐसे उनका स्वभाव के अनुसार काम करेगा तो धर्मस्य, दैट इज धर्म. धर्म मतलब आपके स्वभाव के अनुसार आपका काम करना चाहिए. एंड वो स्वभाव कैसे पहचानता है, कैसे मालूम पड़ता है? समाज में वर्ण एंड आश्रम के माध्यम से हमको मालूम पड़ता है. वर्ण एंड आश्रम. वर्ण मतलब अब ऑक्यूपेशन, एंड आश्रम मतलब जीवन शैली. कैसे मालूम पड़ेगा? जब तक आप काम नहीं करेंगे तो आपका वर्ण क्या है कैसे मालूम पड़ेगा? वो जनरली जन्म से मालूम पड़ जाता है. इन जनरल देखिए, कोई भी स्टूडेंट पारुल इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो मेडिकल कॉलेज नहीं है ना, मेडिकल भी है उसमें, मेडिकल भी है, ठीक है. अभी कोई इंजीनियरिंग कॉलेज ले लीजिए, मेडिकल का नाम नहीं है उसमें, एग्जाम्पल के लिए. इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, इसका मतलब है उसका वर्ण तय हो गया. He has taken admission in that engineering college, that indicates he wanted to become engineer. Simple. एडमिशन क्यों लिया उधर? या आपका इच्छा से लिया, क्या आपका माँ बाप का इच्छा से लिया? अल्टीमेटली आप एडमिशन लिया है उधर, इसका मतलब आप इंजीनियर ही बनना है. आप किसी भी व्यक्ति को इंजीनियरिंग ज्वाइन करने के बाद उनको अच्छा नहीं लगा, मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगा, या जो भी है उनका, देन कुछ समय के बाद वो शिफ्ट भी कर सकता है. ऐसा नहीं है 1 महीना 2 महीना में शिफ्ट करके दूसरे कॉलेज में, दूसरा डिवीजन में जा सकता है ना. आई रिमेंबर we all 3 brothers are very good in mathematics, 100 out of 100 in every class including 10th standard. So naturally क्या होता है, आगे +1 +2 में आपको डिसीजन लेना पड़ता है, या आप मेडिसिन साइड जाना है या MPC BPC बोलते थे, मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, या बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. सो हम मेरे बड़े भाई है वो चूज़ किया, MPC चूज़ किया, और उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट बोलता है उधर दक्षिण भारत में, +1 +2 बोलता है ना इधर, 12वीं. सो मैथमेटिक्स ले लिया, MPC लिया. लेकिन मेरे बड़े पापा ने ना सोचा, ना क्या MPC है, इंजीनियरिंग क्या इंजीनियरिंग, कुछ नहीं है, डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छा कमाई कर सकता है, फीस ज़्यादा ले सकता है, पैसा अच्छा कमा सकता है. उनको 2 महीने के बाद MPC डिवीजन से निकाल के BPC में बिठा दिया. एंड इतना दर्द हुआ उनको, मेरे भाई को, बड़े भाई को, पूरा जीवन तक नहीं भुलाया उन्होंने.
टिल मेरे बड़े पापा जिंदा रहने तक वो बोलते वो अनकंफर्टेबलनेस उनके प्रति। देखिए उसके बाद वो इंटेलिजेंट आदमी है, अच्छा बड़े डॉक्टर बन गए, एमडी बन गया, बहुत बड़ा हॉस्पिटल हेड बना, सब कुछ है, लेकिन वो खड़ुआ हुआ था ना, फोर्सफुली उनको लेके जाके बिठाया। कुछ लोग खुद स्वेच्छा से भी कर सकता है। सो इस हिसाब से देखता है शास्त्र में या पुराण में हम देखता है विश्वामित्र वो स्वभाव से वो क्षत्रिय थे। स्वभाव से मतलब जन्म से वो क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया, और उसके बाद उसी हिसाब से ट्रेनिंग भी हुआ। लेकिन क्रोधित होकर, वशिष्ठ से क्रोधित होकर सोचा है अरे ये ब्राह्मण है, मुझसे भी ज्यादा शक्ति है इनमें, मुझसे भी ज्यादा शक्ति है, चलो मैं भी ब्राह्मण बनूंगा। प्रयास किया, साधना किया, ब्राह्मण बन गए। बाद में विश्वामित्र क्या बन गया? ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बना। बना नहीं बना? परशुराम देखते हैं, परशुराम ब्राह्मण कुटुंब में जन्म लिया, सेज, सेंट पराशर मुनि। हाँ, व्हाट इज हिज फादर नेम? जमदग्नि, सॉरी जमदग्नि, एक मुनि, सेज। लेकिन बाद में when he saw that the whole world क्षत्रियस आर पूरा बिगड़ा हुआ है, उनको सजा देने के लिए आवेश स्वीकार लिया, क्षत्रिय का रूप धारण किया, खड्ग पकड़ लिया, even though he's a ब्राह्मण, बट क्षत्रिय का धर्म को ले लिया। सो देर आर एग्जाम्पल्स वेयर जन्म से ही आप एक ऑक्यूपेशन के अनुसार जन्म लिया, कोई पॉट मेकर में जन्म लिया, कोई व्हाट इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ कपड़ा बनाने वाला परिवार में जन्म लिया, कोई किसान का परिवार में जन्म लिया, कोई क्षत्रिय मिलिट्री राजपूत परिवार में जन्म लिया। सो देखिए जो भी बच्चे उसी परिवार में जन्म लेते हैं स्वाभाविक रूप में उनको ऐसे मेंटालिटी होता है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं भागवतम में, ध्रुव महाराज 5 साल का बच्चे हैं, इतना क्रोधित हो रहा था। अरे 5 साल के बच्चे में इतना क्रोध कहां से आएगा? So Prabhupada said, see the Kshatriya spirit. What is the Kshatriya spirit? एक बार पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं है, determined. The determination is coming from the Kshatriya spirit because he is born in a Kshatriya family. सम्राट चक्रवर्ती का बेटे थे वो। सो स्वाभाविक रूप से जन्म से ही वो परिवार का, वो जिस परिवार में जन्म लिया है वो स्वाभाविक रूप में उनको वो नेचर प्राप्त होता ही है। सो इधर बता गया है वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य, by performing activities as per his स्वभाव, as per nature and as per his lifestyle. Like for example, all of you are students now. As a student क्या करना चाहिए आपको? पढ़ाई करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, आगे जीवन के लिए फाउंडेशन बनाना चाहिए। That is your duty. No, मैं काम करूंगा। क्या काम करूंगा? पिज्जा, जोमैटो क्या बोलते हैं उस, हाँ स्विगी जोमैटो। शाम को जाके एक बार पैसा कमाने चालू करेंगे ना, अब पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देगा। क्यों? पैसा कमाएगा तो पैसा खर्च भी करना पड़ता है ना। पैसा कमाएगा तो क्या करना पड़ता है? खर्च भी करना पड़ता है। एंड स्टूडेंट लाइफ में कैसे पैसे कैसे खर्च करेंगे हम? अब मैं बोलने की जरूरत नहीं है, बिगड़ जाएंगे। जब जो चीज करना है उसी समय में करना चाहिए। Whatever you have to do in your life, whenever it has to be done, it has to be done like that. Student life is a foundational life. You have to put right foundation to the building. आपका जीवन के लिए सही फाउंडेशन लगाना चाहिए, देन उसका आगे जाकर इसका पढ़ाई का फल मिलने वाला है, जीवन में कुछ ना कुछ काम करने वाला है। सो स्टूडेंट लाइफ एक जीवन में एक अंग है। बाद में रिस्पॉन्सिबल लाइफ, इसका मतलब स्टूडेंट लाइफ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। स्टूडेंट लाइफ एक फाउंडेशन लाइफ, ज्ञान प्राप्त करने का समय है। देन
आता है पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन। जवाबदारी लेना चाहिए। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अनदर सोल, नॉट एक नहीं है, 2 3 4। पुराना जमाना में तो 10 तक जाते थे, 10 आत्मा, 10 व्यक्ति को जवाबदारी लेना। आजकल एक को लेना ही बहुत कंटाल हो रहा है जीवन में। टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट ए इजी थिंग। In fact, that is a Lord's creation. Lord wants jivas to become responsible. Why? In that responsibility, there is a seva, there is a service. Taking care of the child is a service. Expressing love, expressing affection. क्यों बोला गया है बच्चे में भगवान दिखाई देता है? भगवान हर व्यक्ति में है, ऐसा नहीं है बच्चे केवल बच्चे में ही है। लॉर्ड इज देयर इन एवरीबॉडीज हार्ट। कृष्णा सेज आई एम सिटिंग इन एवरीबॉडीज हार्ट। लेकिन केवल बच्चे में क्यों है? बच्चे पाप रहित है, बच्चे पाप रहित, दे आर इनोसेंट। इनोसेंट मतलब फ्री फ्रॉम सिंफुल रिएक्शन, सिंफुल नॉट सिंफुल रिएक्शन, रिएक्शन बाद में आएगा, अभी एटलीस्ट कुछ पाप नहीं कर रहा है। ऐसे बच्चों को ऐसे अच्छे संस्कार देना, आगे भी जाके पाप नहीं करने के जैसे, इवन तो उनका पाप कर्म आने वाले हैं, थोपने वाले उनके ऊपर, इट इज गोइंग टू कम लाइक अ गोस्ट ऑन हिम, बट स्टिल हाउ टू प्रोटेक्ट दैट चाइल्ड बाय गिविंग राइट कल्चर एट द राइट एज। कितना बड़ी जवाबदारी है माता पिता का। हाउ रिस्पॉन्सिबल लाइफ इट इज, दैट इज गृहस्थ लाइफ। गृहस्थ लाइफ मतलब नहीं है शादी हो गया, सेक्स जीवन हो गया, दैट इज नॉट गृहस्थ लाइफ। गृहस्थ मतलब जवाबदारी। जवाबदारी किसके लिए? और एक आत्मा के लिए, और 2 आत्मा के लिए, और 10 आत्मा के लिए जवाबदारी जीवन है। उनका पाल पोषण करना, बड़ा करना, उनका पैर में खड़ा करना, गृहस्थ जीवन। देन व्हाट इज दैट थर्ड वर्ड? वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थाश्रम मतलब कब तक दुनिया में सबको उद्धार करने में बैठेंगे हम? हमारा उद्धार कब होगा? ठीक है, जब एक अच्छा सोच विचार से, भगवान का मार्गदर्शन से, शास्त्र के अनुसार हम जीवन चला रहे तो हमारा उद्धार भी धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा जीवन को उद्धार। क्यों? समय कम हो रहा है। पहले जमाने पे 100 साल थे, आजकल 60-70, बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारा आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर है अहमदाबाद में, बहुत सुंदर व्यक्ति है, बहुत सच्चा नाइस पर्सन। से बात करते हुए मन प्रसन्न होता है। स्मॉल चाइल्ड है। एक दिन शाम को 5 बजे को ऐसे नाश्ता किया घर पे। मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ फ्रेंड्स के साथ, बोल के वाइफ को बोल के गया, क्रिकेट खेल रहा है, ऐसा बॉल आ रहा है, बैट पकड़ लिया है, गिर गया। बाल को मारा ही नहीं है, बाल आ रहा है, तो बैट पकड़ा है, गिरा है, बस। फ्रेंड्स पूरा ठंड हो गया बॉडी, तुरंत उनका हॉस्पिटल ले गया। जैसे हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाने के पहले मुझे रास्ते में ही कुछ नहीं था, नॉर्मल था। हिज वाइफ वाज फीडिंग, वो जल्दी जाने ना, फ्रेंड्स बोला मैं जल्दी जा रहा हूँ। वेरी यंग, मे बी mid-30s, early 30s और mid-30s। कोई गारंटी नहीं है जीवन। सो समय बहुत कम है। इतना कम समय में जवाबदारी निभाते हुए, while taking care of the responsibilities what we have owned, जो जवाबदारी हम खुद के ऊपर लिया है, उसको निभाते खुद का बारे में थोड़ा ही सोचना चाहिए। दैट इज कॉल्ड वानप्रस्थ। सोम दीजिए, ठीक है, पाल पोषण किया, बड़ा हो गया, उनका पैर के ऊपर खड़ा हुआ है, अभी थोड़ा आध्यात्मिक चिंतन के ऊपर, आध्यात्मिक चिंतन होना चाहिए जीवन में। ऐसा नहीं है अचानक से 60 साल में खड़ा होकर आध्यात्मिक चिंतन करूंगा, कभी भी नहीं कर सकते आप। पूरा जीवन बचपन से संस्कार प्राप्त होना चाहिए। एंड जीवन में आप इवन गृहस्थ जीवन में भी सब पूजा पाठ, भगवान का ध्यान, भगवान का नाम, सब कुछ होता ही रहना चाहिए। देन उसको एनहेंस करने का काम है वानप्रस्थ में होता है।
वानप्रस्थम होता है. Then finally, Prabhupada very nicely writes in this purport, what are the 4 divisions? Very जनरली हम संन्यास बोलते हैं, संन्यास आश्रम बोलते हैं ना. प्रभुपाद बोलते हैं what is that? This is a devotional, where is that? Student life, which line? Student life, householder life, retired and devotional life. आजकल संन्यास मतलब डर लगता है. यानी कोई भी प्रभु जी लोग भी, कोई डिवोटी भी भक्ति मार्ग में आ रहा है तो पेरेंट्स पूरा घाबर हो जाए, संन्यास ले लिया, संन्यास ले लिया. इज नॉट संन्यास, इट इज डिवोशनल लाइफ. डिवोशनल लाइफ मतलब आप जवाबदारी लेना चाहते हैं ना, वो जवाबदारी भगवान का ही सेवा करना. वो जवाबदारी क्या है? केवल भगवान का ही. आप आत्मा को देखभाल करना है तो कितना आत्मा को देखभाल कर सकता है? 1 पत्नी, 2 बच्चे, पुराना जमाने में तो 10 बच्चे, टोटल मिलकर कितना हो गया? 10 बच्चे प्लस 1 पत्नी, कितना हो गया? 11 लोगों को देख, ज़्यादा से ज़्यादा 11 लोगों को, वही भी पसीना उड़ जाता है. इतना आसान नहीं है. आजकल लोग ऐसे करते हैं, बच्चे ही नहीं पैदा करना. क्यों? कौन लेगा झंझट? मैं आपके लिए, आप मेरे लिए. बस एक को सिर के ऊपर, एक का विजन लेना, एक का जवाबदारी लेना भी बहुत कंटाल हो रहा है आजकल जीवन में. लेकिन डिवोशनल लाइफ लेने से, भगवान का सेवा करने से क्या होगा? लोक कल्याणार्थम, यू विल बी बेनिफिटिंग एंटायर लोका, एंटायर ह्यूमन रेस. केवल आप भगवान का नाम जप करने से, प्रभुपाद जी कहते हैं, आज भी कुछ लोग भगवान का नाम जप कर, इसलिए थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है. को बारिश होता है यज्ञ से होता है. अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्य अन्न संभवः. That the crops are grown, that anna, the first of all, life is sustained by grains, and the grains, the crops are grown by parjanya. Parjanya means rains. And that rains comes not just because बारिश आओ बोलेगे तो नहीं आएगा. बारिश आने के लिए क्या होना चाहिए? यज्ञ, सैक्रिफाइसेस. सैक्रिफाइस होना, पूजा पाठ होना चाहिए. जो सप्लायर को फीस पे करना पड़ता है, सप्लायर को संतुष्ट करना पड़ता है. आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे मत कीजिए, क्या सप्लाई आएगा क्या आपको? So there are demigods, there are devatas, the suppliers of rain, headed by Indra. So you have to please him. So yajna. So Prabhupada says, in Kali Yuga, everything became topsy-turvy. Yajna is gone. So real yajna in Kali Yuga is Sankirtan yajna. And आज भी कुछ लोग भगवान का नाम जप कर रहे, घर में कर रहे हैं, मंदिर में कर रहे हैं, अलग बात है. लेकिन कुछ लोग भगवान का नाम ले रहा है अभी भी, इसलिए थोड़ा बहुत हो रहा है. नहीं तो यही भी नहीं होगा. कलयुग में और ऐसे समय आने वाला है आगे जीवन में, पूरा टॉपसी-टर्वी होने वाला है. आज भी कुछ जगह में देख सकते हैं हम, पूरी दुनिया में कुछ पॉकेट्स में आज भी देख सकते हैं बारिश नहीं है. बारिश है तो भी इतना फ्लडेड है, पानी के पीने के, इतना बारिश है लेकिन पीने के पानी नहीं है. all are actions. So if somebody takes devotional life, that is meant for not only खुद का जीवन को उद्धार करने का, and but also it's benefiting the whole universe. That is devotional life. So इसी हिसाब से ये वर्ण आश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य, by practicing dharmasya, by practicing the prescribed duties of one own self, what is happening? Samsiddhir haritoshanam. You are pleasing the Lord by performing your own activity. In the Bhagavatam 3rd canto, Kapila says that Swadharmacharanam Shaktya. Swadharma Acharanam Shaktya. Very simple Sanskrit. Swadharmam, one's own Swabhava, one's own nature, according to one's own nature.
आचरणम शक्तिया, एज फॉर योर शक्ति, एज फॉर योर एबिलिटी, एज फॉर योर कैपेसिटी, जो आपका स्वभाव है उसी के अनुसार आचरणम, उसके अनुसार जिए। यू फॉलो योर ओन नेचर, आपका स्वभाव को आप आचरण कीजिए। विधर्माच न निवर्ततम, विधर्माच निवर्ततम, डोंट डू एन एक्टिविटी विच इज अगेंस्ट योर नेचर और विच इज नॉट योर नेचर। वो आपका स्वभाव को प्रतिकूल है, ऐसे काम मत करना। दैवा लब्धेन संतोषा, जो भी दैवान लब्धेना, लब्धेना मतलब प्राप्त, दैवान लब्धेना, जो बाय द डिवाइन अरेंजमेंट, जो भगवान की कृपा से जो भी प्राप्त होता है उससे क्या करना चाहिए? संतोषा, खुश रहना। बी सेटिस्फाइड वॉट एवर कम्स इन योर लाइफ बाय द अरेंजमेंट ऑफ द लॉर्ड। भगवान की कृपा से जो कुछ भी प्राप्त होता है आपके जीवन में उससे संतुष्ट रहो। आत्मविद चरणार्चनम, देन ठीक है, मेरे स्वभाव के अनुसार काम करूंगा, जो भी प्राप्त होता है तो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है तो इसमें मैं संतुष्ट रहूंगा। देन उसके बाद क्या करना चाहिए? आत्मविद चरण अर्चनम। आत्मविद, आत्मविद मतलब शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी, स्पिरिचुअल मास्टर, born of a spiritual master. आत्मविद चरण अर्चनम, you worship the lotus feet of the spiritual master. See, जो आपका स्वभाव के अनुसार होता है वैसे ही काम कीजिए। आपका स्वभाव को प्रतिकूल है उसमें मत जाइए, मत पढ़ना। सो वो स्वभाव कैसे मालूम पड़ता है? चातुर्ण्यम मया सिस्टम गुणकर्म विभागशः। चातुर्ण्य मया सिस्टम, भगवान कहते हैं आई डिवाइडेड दिस सोसाइटी इनटू 4 डिविजन्स ऑफ आश्रम एंड वर्ण। आई डिवाइडेड, तस्य कर्तारम अपि मां विद्य अकर्तारम अव्ययम्। Although I am the creator of this system, you should know that I am yet non-doer, being unchangeable। मतलब भगवान के लिए वर्तित नहीं होता है, but it is meant for human society, it is meant for humans, हमारे लिए। क्यों? हम बद्ध जीवी है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, he is complete, but we are incomplete। so हमारे लिए ये इनकम्प्लीटनेस से कंप्लीट तक पहुंचना है हमको भी। अभी हमारे जीवन में क्या करता है? कोई कुछ भी कमी है, वो कमी को पूर्ण करने के लिए हम प्रयास करता है ना। और पैसा नहीं है, पैसा कमाने की कोशिश करता है। जॉब नहीं है, जॉब लेने की कोशिश करते हैं। डिग्री नहीं है, डिग्री करने की कोशिश करते हैं। फैमिली नहीं है, फैमिली को पुराना ज़माने में मूवी देखते थे, ऑर्फन, जो माता पिता नहीं है, वो इतना तड़पता है मुझको फैमिली चाहिए, मुझको फैमिली चाहिए, मुझको फैमिली चाहिए, है ना। जो भी कमी है हमको लगता है वो कमी को पूर्ण करना चाहिए। सो हमारा कमी क्या है? आनंद कमी है, आयु कमी है, ज्ञान कमी है हमारे जीवन में। ये सब पाना चाहते हैं, यही सच्चिदानंद। हाँ, ये सब पाना है तो सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करना चाहिए, सच्चिदानंद दुनिया पे जाना चाहिए। सो ये मनुष्य के लिए, ये साधना किसके लिए? मनुष्य के लिए। क्यों किया है ऐसे? क्यों? मनुष्य का जीवन, ह्यूमन लाइफ इज वेरी रेयर एंड ऑल्सो वेरी टेम्पररी। इवन दो इट इज वेरी रेयर, इवन दो इट्स टेम्पररी, बट प्रहलाद महाराज कहता है भागवतम में, अध्रुवम अर्थदम। इवन दो इट इज टेम्पररी, अध्रुवम, बट अर्थतम एज ए मीनिंगफुल। Human life, specifically human life as a meaningful life. What is it meaningful life? What is the meaning? What is it meaning in this life? By using this human form of life, this human form of life is a gateway or to enter the spiritual world. आध्यात्मिक दुनिया में जाने के लिए मनुष्य का जीवन एंट्री है, गेटवे है इन दिस वर्ल्ड। केवल मनुष्य जीवन में ही हम भगवान का बारे में सुन सकता है, भगवान का बारे में जान सकता है, ये ज्ञान पा सकता है। ऐसे
प्रेरेपित हो सकता है. We can be enthusiastic to get out of this material world. कुत्ते, बिल्ली, गाय, कितना भी गाय है तो बहुत हम पूजा करते हैं, लेकिन गाय गाय ही है, पशु है ना, उस नहीं समझ सकते ये सारे ज्ञान, केवल मनुष्य ही समझ सकता है. सो देयर इज अ मीनिंगफुल इन दिस लाइफ. सो दैट्स हाउ Lord made a beautiful arrangement called Varnashrama Dharma for the human society, not for animal society. So we should not. क्यों इतना अरेंजमेंट किया है? ये अरेंजमेंट इसलिए किया है भगवान ने, अरे मनुष्य जीवन बहुत मीनिंगफुल है, ये समय क्यों बर्बाद करते हैं? अल्टीमेटली जीने के लिए कमाना पड़ेगा, जीने के लिए खाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहिए? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहिए? मैं सब कुछ सेट कर दूंगा, आप जाइए उधर, आपके गुण के अनुसार जो भी चाहिए आपको प्राप्त होता रहेगा, बस इतना ही है. लेकिन आपका करना क्या? आप इतना एंग्जाइटी, जीने के लिए इतना एंग्जाइटी करने के कोई जरूरत नहीं है. भौतिक जीवन में जीने के लिए इतना एंग्जाइटी क्यों लेना है? एक पशु एंग्जाइटी लेगा, लेकिन आपको लेने की क्या जरूरत है? Why you have to take so much of anxiety? What do you say anxiety in Hindi? चिंता. इतना चिंता क्यों होना है जीवन में? जो बेसिक नेसेसिटी है जीवन में, वो सारी चीज प्राप्त करने के लिए मैं पूरा अरेंजमेंट करूंगा. कैसे? आप ब्राह्मण है तो आपका ऐसे काम करता रहिए, आपका सबका जीवन हो जाएगा. कैसे होगा? कैसे काम? पठन पाठन यजन याजना दान परिग्रहण. शास्त्र पढ़ता रहिए, बस संतुष्ट हो जाएगा. पढ़ाता रहिए, लोग आके भिक्षा देता रहेगा आपको, आपका जीवन हो जाएगा. यजन याजना, भगवान को पूजा कीजिए, भगवान को पूजा कैसे करना है लोगों को सिखाइए. दान परिग्रहण, लोग आके दान देता है आपको, परिग्रहण स्वीकार कर लीजिए. उसके बाद इतना ज्यादा आएगा तो करेंगे क्या? आप दान कर लो. खुद कमाई नहीं किया आपने, खुद कमाने का आपका जीवन शैली ही नहीं है. लोगों को ज्ञान बांटना, ज्ञान भगवान के बारे में समझाना, ये आपका जीवन है. जीवन चलता रहेगा. क्षत्रिय है, आप एडमिनिस्ट्रेशन करो. वैश्य है, खेती करो, गाय को पालन करो, वाणिज्य ट्रेडिंग करो. शूद्र है, क्या है मतलब कैसे डिसाइड किया? आपके गुण के अनुसार. गुण कर्म विभागशः. आपके पास इतना बुद्धि नहीं, इतना तेज बुद्धि नहीं, इतना बुद्धिमान नहीं है सारे शास्त्र पढ़ने के लिए, समझने का, लेकिन आप मेहनत करता है. आपको मेहनत करने का स्वभाव है, मेहनत करो. शूद्र, शूद्र मतलब ऐसा नहीं है वो आजकल शूद्र. It's not about caste feeling. It's about his own capacity to understand the subject matter. That's all. उतना वो मेहनत कर पाएगा, लेकिन बुद्धि इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. ये ब्राह्मण मेहनत नहीं कर पाएगा, बुद्धि इस्तेमाल कर पाएगा. उनमें कुछ चीज है, इनमें कुछ नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति में कुछ है, वो व्यक्ति के लिए जरूरत पड़ता है, उनमें नहीं है. मेहनत हर व्यक्ति करना पड़ेगा. उनके पास मेहनत करने की कैपेसिटी नहीं तो किसी से हेल्प ले लो भाई. आप टेबल उठाना है, टेबल उठाने के आपके पास सामर्थ्य नहीं है, दो लोगों को बुला लो, 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, वो उठा के रख के चले जाएगा, बस खत्म हो गया. लेकिन वो 10 रुपए कमाने का शक्ति, बुद्धि आपके पास है. उनके पास 10 रुपए कमाने का बुद्धि नहीं है, उनके पास उठाने का बुद्धि है. ये उठाने से उनको भी 10 रुपए मिल रहा है. सो उनका कमाने का स्थिति क्या है? मेहनत करके. आपका कमाने की स्थिति क्या है? बुद्धि इस्तेमाल करते हुए. एक बुद्धि इस्तेमाल करेगा और एक बल इस्तेमाल करेगा. सो दोनों बराबर छे है कि नहीं है? देखिए, सो दैट इज व्हाट लॉर्ड नेवर क्या भेदभाव नहीं दिखाता है. भगवान भेदभाव नहीं दिखाता है. लेकिन एक में बल क्यों है, एक में बुद्धि क्यों है? कर्म के अनुसार. कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्ति. शरीर ऐसे प्राप्त हुआ है पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार. आप कर्म ऐसे कर्म किया होगा, अब तो बुद्धिमान बन गए जीवन में, है ना. आपके कर्म के अनुसार आप प्राप्त किए हैं, उसी के अनुसार आपको उसी परिवार में जन्म दिलाया. आप उसी परिवार में जन्म लेते हो, उसी परिवार का एक ऑक्यूपेशन है,
वो परिवार का ऑक्यूपेशन के हिसाब से चलता रहिए। सो कहने का मतलब है आप जीने के लिए इतना एंग्जाइटी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिना एंग्जाइटी जीवन कैसे चलेगा? इस दुनिया किससे बना है? दुख काले में शाश्वतम, हमेशा दुख में है, हमेशा एंग्जाइटीज में है। सो एंग्जाइटी रहेगा जीवन में, लेकिन नित्य अवसर बोलता है बेसिक नेसेसिटीज के लिए एंग्जाइटी, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, पारिवारिक जीवन जीने के लिए एंग्जाइटी मत लेना। पुराना जमाने में कोई खाने के लिए, पीने के लिए गांवों में कोई परेशान नहीं लेते थे, बिंदास। एक ही क्राफ्ट है, मतलब ऐसा नहीं है रबी कबीर क्या बोलते उसको, 2 सीजन्स होता है ना, व्हाट दैट कॉल्ड, रबी एंड खरीफ, ऐसे 2 सीजन। हमारे गांव में तो 3 सीजन करते थे। क्यों? समर में भी गर्मी में भी मेहनत करते थे। क्यों इतना मेहनत करते हैं? लोन से बच्चे का पढ़ाई है, देन फर्टिलाइजर खरीद करना है, देन पैसा कमाना है। हमारे बचपन में बहुत मेहनत किया गाँव में। लेकिन उसके पहले ज़माने में लोग एक ही सीज़न में काम करते थे। एक सीज़न मतलब 12 महीने में केवल 4 महीना, उसके बाद 8 महीने बिंदास जीते थे, जो भी चाहिए सब कुछ हो जाता है। ग्रेन से एक सीजन में बनाते थे, रेस्ट ऑफ द टाइम में थोड़ा सब्जी गिब्जी लगा के जीवन चलाते थे, बस इतना ही। खाने के लिए, पीने के लिए कोई परेशान नहीं होता। इतना पैसा कमा के शादी करना ऐसे भावना ही नहीं था पहले। शादी उम्र आ गया, शादी करना बस खत्म। इतना पैसा कमाना, इतना जंजीर सिर को, इतना एंग्जाइटी नहीं था। बेसिक नेसेसिटीज के लिए इतना एंग्जाइटी नहीं था। लेकिन एंग्जाइटी इसके लिए था, इसके लिए होना चाहिए मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे कैसे बढ़ूं, ये भौतिक दलदल से कैसे बाहर निकलूं, ये चिंता होना चाहिए। जब जो व्यक्ति भौतिक द बेसिक नेसेसिटी के लिए पीछे एंग्जाइटी में पड़ा है, तो भगवान के बारे में सोच कहां से आएगा? आध्यात्मिक चिंतन कहां से आएगा? जब तक इससे, जैसे प्रभुपाद जी भी कहता है, जो भूखा आदमी को भगवद गीता क्या सुना पाएंगे? भूखा आदमी को पेट भराओ, पहले खाना खिलाओ, उसको भगवद गीता घुसेगी भी नहीं इस कान के अंदर। जब तक आप भौतिक एंग्जाइटी से बाहर नहीं निकलता है, तब तक आध्यात्मिक एंग्जाइटी फायदा नहीं होगा आपको। भगवान इतना सुंदर अरेंजमेंट किया है। क्या अरेंजमेंट है? वर्णाश्रम सिस्टम। भाई कोई चिंता करने के लिए, आपका पापा क्या काम करते हैं? व्हाट इज देयर फादर्स बिजनेस? जॉब। मालूम हो गया। एक कोई एग्जाम्पल बता भाई, खेड़ोत। हाँ, खेती करो ना, कोई एंग्जाइटी नहीं है। पापा ऑलरेडी जमीन खरीद करके बैठा है, पापा ऑलरेडी कर रहे हैं, अब जाके और एक खत डाल दो, खत्म हो गया। कोई एंग्जाइटी ही नहीं है कि नहीं? सिंपल बात है। लेकिन अभी क्या है? नो, अलग डायरेक्शन में जाना है, मेहनत करना है, अभी पास करना है, इतना परसेंटेज लाना है। उसके बाद ना प्रभुपाद जी बोलता है, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट प्रभुपाद जैसे जस्ट लाइक सर जॉब दीजिए, सर जॉब दीजिए, लाइक ए डॉग गोइंग टू, सर प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर सर्वेंट, सर मैं आपका नीचे काम करना चाहता हूँ, मुझे एक्सेप्ट कीजिए। रिजेक्टेड। दैट्स कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नो, व्हाट इज मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट? आप डिग्री पा लिया, वही भी धक्का मार के पा लिया डिग्री, मेहनत करके, और उसके बाद जॉब में जाता है तो जॉब ही नहीं मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अरे भाई, पुराना जमाने में अनएम्प्लॉयमेंट का कभी भी सुना है? अनएम्प्लॉयमेंट क्यों? पापा का काम, क्यों? इफ यू पार्ट मेकर, ऑटोमेटिकली बेटा का पार्ट मेकर बनेगा। ये कपड़ा क्या बोलते उसको, नो दैट वीवर्स, ऑटोमेटिकली विल बिकम वीवर्स। कोई बिल्डिंग बनाने वाला ऑटोमेटिकली विल बिकम बिल्डिंग, जो भी ऑक्यूपेशन से, आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड्स। If his father is administrator, he'll become administrator automatically. He also, because वैसे भी स्वभाव है। अरे भाई देखिए, डॉक्टर के परिवार में डॉक्टर बनना इजी है मुश्किल है? बताइए। इजी है।
क्यों? बचपन से वही देख के आए हो, प्रेरणा भी होता है, वो टर्मिनोलॉजी भी सुनता 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 घर में भी सुनता रहता है ना, वो टर्मिनोलॉजी सुनता रहता तो आदत हो जाता है मेडिकल सब्जेक्ट मैटर। इतना सिंपल से। सो भगवान ने इतना सुंदर अरेंजमेंट किया है भाई, आपका जीवन के भौतिक जीवन के लिए जीने के लिए कोई एंग्जाइटी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक चिंतन करना। और आध्यात्मिक चिंतन कब होगा? जब ये एंग्जाइटी से बाहर निकलेगा। इतना सुंदर व्यवस्था भगवान ने किया है, लेकिन आजकल इसको कैश सिस्टम बोल के क्या बना के बैठे। सो बाय अडॉप्टिंग दिस प्रोसेस, हरितोषणम विल बी प्लीजिंग द लॉर्ड। देखिए, भगवान ने कुछ उद्देश्य ये चीज बनाए हैं, हम उसको फॉलो करेंगे तो हम भगवान को संतुष्ट करेंगे, खुश करेंगे। जब भगवान को खुश करेंगे तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसता रहेगा। लेकिन आज का स्थिति क्या है? कोई किसान का बेटा किसान बन ही नहीं सकता है। मुझे याद है बचपन में 10वीं कक्षा पढ़ रहा था मैं, हम किसान का परिवार से हैं। सो ये पढ़ाई करने से कभी भी घर जाता है तो भी, स्कूल से घर जाता है तो भी हम खेती करते थे नॉर्मली, बिकॉज इट स्वाभाविक है, इट्स वेरी नेचुरल। ऐसे नहीं लगता किसी खेती में जाके हम कुली कर रहा है खुद का घर का काम है ना, खेती करते थे। सो उसका याद है ग्राउंडनट होता है ना, मूंगफली का निकालना, देन सेग्रेट करना। सो ऊपर से फ्लाइट जाता था। सो मेरे पापा देख के बेटा तुम एक दिन उसमें बैठ के जाना है। वो खेती करने वाला भी सोचता है मेरा बेटा ये खेती भी काम नहीं करना है। दुनिया इसी तरफ शिफ्ट हो गया। पहले लोग गर्व लेते थे, हमारा पास इतना जमीन है, हमारा बेटा भी खेती करता है। जैसे डॉक्टर परिवार में हमारा बेटा भी डॉक्टर है, या लॉयर से हमारा बेटा भी लॉयर है, गर्व लेते थे। आजकल सभी वृत्ति में गर्व लेता है, जहाँ जॉब पैसा कमाने में, खेती वाला गर्व नहीं ले रहा है आजकल। ऐसी स्थिति हो गया है। क्यों? उनको लगता है बहुत मेहनत करना पड़ता है। दूसरा है तो एसी में बैठ के, लेकिन मेहनत करने वाला 100 साल जीते थे, एसी बैठने वाला 30 साल में मरना है। ये जानते नहीं लोग। दिस हैपेंड इन 10th स्टैंडर्ड लीज, मतलब 92 में हुआ। उसके बाद 2012 में मेरा माता पिता पहली बार फ्लाइट में बैठ के अहमदाबाद आया। मेरे भाई ने उनको फ्लाइट में लेकर आया। मतलब कितने साल के बाद? 92 टू 2012 में कितना हो गया? 20 साल के बाद वो लोग फ्लाइट में आए थे। सो हम ऐसे एक मकान में रहते थे, तलटेज घर पे अहमदाबाद में। सो बगल में बैठ के मेरे पिताजी से पूछा, आप, उसको याद था मेरे पापा ने बोला था ना बेटा एक दिन आप उसमें बैठना है। सो मैं याद दिलाता, पापा आज पहली बार फ्लाइट में बैठ के हैं, मुझको याद है आपका सपना था हम सभी फ्लाइट में बैठ के जाना है, आज आप भी आज फ्लाइट में बैठ के हैं, कैसे था? ऐसा हाउ इट इज, बहुत कंजेस्टेड था। सो अनकंफर्टेबल यू सेइंग। सो ऐसे अनकंफर्टेबल में बैठने के लिए आप इतना परिश्रम करके आप बच्चों को, लोगों का ना, देयर प्रायोरिटीज हैव चेंज्ड। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान को पाने का। आजकल लोगों का उद्देश्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? खुश रहना है। लेकिन खुश कैसे रहना है लोगों को मालूम नहीं। जब तक आप भगवान का चरण कमल पे नहीं आता है, जब तक भगवान का चरण कमल पर सेवा नहीं करता है, तब तक कोई खुशी का बात ही नहीं है जीवन में। There is no question of happiness in this world. There is no happiness at all in this world, Prabhupada says in no happiness at all in this world. Everything is dukkhalayam. Even जो सुख प्राप्त करने का चीज सोचता है, वही भी दुख प्रदान करने वाला है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा था कल की क्लास में, हम खाते हैं, we eat because it is a very pleasurable activity. Then we विसर्जन करता है, वो प्लेजरेबल एक्टिविटी है। स्पेशली कॉन्स्टिपेशन है तो बहुत दुख, बहुत मुश्किल है।
सी बट विसर्जन क्यों करना पड़ रहा है? काया है। विसर्जन दुख की चीज है, काया है, वो खुशी की चीज है। अरे खुशी का चीज से आपको दुख प्रदान हुआ है, देन वो खुशी का चीज कैसे हुआ? यू अंडरस्टूड ऐसे? सो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं नथिंग कॉल्ड हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, इवन सो कॉल्ड हैप्पीनेस इज रिजल्टिंग इन दुक्खा. So what is there in this world is only dukkha. So we have to be satisfied. Our satisfaction is actually in satisfying Krishna. Prabhupada says one place, when war is happening, पुराना जमान पे है, जब वॉर चलता है, लड़ाई चल रहा है, तो फार्मर सच्चे फसल काट रहा है, कुछ परवाह नहीं, उनको कुछ पढ़ाई नहीं है. जो जहाँ दो राजा लोग लड़ाई करने तो भाई क्षत्रिय है, वो लड़ाई करता रहेगा, हमको क्या लेना देना है, हमारा फसल काटेंगे. जो भी लड़ाई के एक जीतेगा एक हारेगा, जो भी जीतेगा उनको हम 25% वैसे भी हमको टैक्स पे करना है, टैक्स पे करता रहेंगे. हमारे जीवन में जो करना है करता रहेंगे, हम क्या लेना देना उससे. सो मतलब उधर लड़ाई चल रहा है, इधर चिंतित, लड़ाई चल रहा, क्या होगा, कोई चिंता नहीं है, उनका काम कर रहा है, बस करता रहेगा. Actually, the olden days people are like that. They're very self-satisfied. जो भी काम है हम उनको दिया गया वो काम करता रहेगा, टैक्स पे कर लेंगे. ये राजा वो राजा, क्या मतलब, कोई भी राजा है, कुछ परवाह नहीं है. It's no this thing. So like that, we should be satisfied with whatever work, prescribed duties. दुनिया क्या चल रहा है, दुनिया कैसे चल रहा है, वो क्या हुआ, ये क्या हुआ. लेकिन आजकल स्थिति क्या है, आप ऐसे सोचेंगे तो भी नहीं जी सकता है, क्योंकि पीछे आपका फोर्स है. माता पिता, सोसाइटी, मामा चाचा, अरे क्या इंजीनियर इंजीनियर बना, इतना प्रेशर है, इतना फोर्स है. इसके बच के रहना है तो अभी उसके लिए छोड़ दो. अभी क्या करना है, खेती करना है, मटका बनाना है, वो चीज़ से हम दूर हो गया. अभी क्या करना है, इंजीनियर करना है तो कर लीजिए, कोई चिंता नहीं है, लेकिन भगवान का नाम लेना. क्या करना है, भगवान. कलेर दोष निधे राजन अस्त्रिय को महान कीर्तनादीव कृष्ण से मुक्त संग. प्रभु ये सारी चीज़ें सुनने के लिए बहुत अच्छे लगता है, लेकिन अभी समाज का स्थिति बदल चुका है. अभी क्या मतलब है वर्णाश्रम ही नहीं है दुनिया में आजकल. देखिए भगवान की इच्छा है तो हो सकता है कुछ समय के लिए वो छुप गया है, दोबारा कभी ना कभी आएगा. प्रभुपाद एज एनविजन्ड, कभी ना कभी आएगा. लेकिन आज क्या करना चाहिए हमको ऐसी स्थिति पे, भगवान का नाम ले लीजिए बस. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. स्थाने स्थितिम स्तुति वाक मनोभिराम. जहां भी हो, जैसे भी हो, स्थाने स्थितिम, जहां भी हो, स्थितिम कैसे भी हो, तनु वाक मनः, शरीर, वाक मतलब वर्ड्स, एंड मनः मन इस्तेमाल करते हुए भगवान का नाम जप कीजिए बस, भगवान का भक्ति कीजिए. Stop here. Any question or comments? गंधराश्रम भागवतम की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की.